Hello everyone, welcome back again. Today we are once again with another episode of Success Story. We have Utkarsh who has recently cleared RBI Grade B 2024. So first of all, many congratulations to Utkarsh for this Thank you, sir. one of the humongous basic achievement for him. Let me tell you something about Utkarsh. He had missed NABARD Grade A 2022 by only 0.75 marks. Later, he started giving RBI Grade B from 2023, and in his first attempt itself, he reached the interview stage, and there he missed the final selection by 7 marks. Also, after there were some unfortunate UICL exam also, there he missed final selection by few marks. And later, last year in 2024, he cleared the RBI Grade B 2024. So in this particular session, we are going to learn a lot from his experience, the kind of struggles that he had, how did he started, when did he started, and all such things would be we would be love to know about his journey basically. So let's get started. So my first question to Utkarsh, आपने सब you have done BCom, right? हाँ, let me tell you something about educational background. He has done BCom honors. So my first question is, you had done BCom honors, right? So you could have Yes. started banking preparation right away. बट आपने लेट स्टार्ट किया, यू स्टार्टेड इन 2022. सो व्हाट वाज द रीजन, या फिर पहले आपने क्या किया, फिर आपने स्विच क्यों किया? सो टेल मी समथिंग अबाउट दैट थिंग फर्स्ट. Yes, sir. So I shifted from Lucknow to Delhi for my BCom honors between 2015 to 18. I did from Shri Ram College of Commerce, Delhi University. So वहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोरेटरी फेज था इन द फर्स्ट ईयर स्पेशली, जिसमें आई वाज ट्राइंग टू डेल्व माय इंटरेस्ट कि किस में ज्यादा इंटरेस्ट है मेरा. तो आई वाज पार्ट ऑफ क्विजिंग, डिबेटिंग, यूपीएससी सेल एज वेल, एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर एक इनएक्टिव करके सोसाइटी है, उसमें भी पार्ट थे. तो वहां पे जो मेरी कॉलिंग आई, वो कॉलिंग मुझे समझ में आया कि आई वांट टू वर्क फॉर द टारगेटेड कम्युनिटीज, आई वांट टू वर्क इन द पब्लिक पॉलिसी मेकिंग सेक्टर, आई वांट टू वर्क इन द इम्पैक्ट सेक्टर. तो फिर वहां पे यूपीएससी सेल बहुत अच्छी है, तो उससे गाइडेंस मिली. सीनियर्स से पता चला काफी कुछ. आई माई सेल्फ रिसर्च अ लॉट, एंड देन आई डिसाइडेड दैट आई शुड परस्यू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. So I didn't sit for placements. I immediately after 2018 I joined UPSC coaching in Old Rajendra Nagar, and I started my UPSC preparation. तो 2019-20 attempt उतना अच्छा नहीं हुआ, but 2021 and 22 attempts were good. I missed prelims only by 1 marks each in both the attempts. And but काफी टाइम हो गया था प्रिपरेशन को. एंड यूपीएससी में जाने का एक बहुत बड़ा रीजन था दैट आई लव एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज. एंड कहीं ना कहीं फिर वो डल एंड बोरिंग प्रिपरेशन होने लगी थी बाय द टाइम आई वाज इनटू फोर्थ अटेम्प्ट. सो आई डिसाइडेड दैट इट्स टाइम टू pivot now. Plus, my father also retired in 2022. So I thought it's time that I should look for other avenues. So then I decided that since 4 gap years we ho gaye the between 2018 to 22, so I decided that I should pursue MCom from Delhi University only. And I shifted towards regulatory body exams like RBI, NABARD, etc. एंड सिंस कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो सेबी भी बहुत अच्छा वेन्यू लग रहा था. बट सेबी में सिंस पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होता है, तो लगा कि एम कॉम करते 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 हैं. अगर बाई चांस, सिंस लक फैक्टर भी थोड़ा बहुत होते ही है, तो अगर बाई चांस रेगुलेटरी में नहीं निकला, देन आई कैन शिफ्ट टू प्राइवेट जॉब बाय 2024. सो दैट वाज द ओरिजिनल प्लान. देखो, एक मैं आगे बढ़ने से पहले एक मैं क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहता हूँ. यू डिड एमकॉम, राइट? बट द Yes, एलिजिबिलिटी sir. क्राइटेरिया सेज दैट इट शुड बी ग्रेजुएशन. सो हाउ इम्पोर्टेंट इज गोइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन व्हेन वी गो फॉर आरबीआई और एनी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम? Sir, for RBI NABARD, definitely only graduation is there, but SEBI में post graduation भी मांगता है, तो 3 + 2 years का. So अगर मैं जैसे that was पूछूं कि the. अगर मान लो कोई कर मतलब आप अगर रेगुलेटरी ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बट होता नहीं एक अनसेड ट्रूथ के बारे में कि आप जब जाते हैं जितना आपका एक्सपर्टीज है, तो व्हाट डू यू थिंक कि ये क्या जरूरी है? अगर आपको किसी को सजेस्ट करना हो तो शुड बी सजेस्ट और ओके कि ग्रेजुएशन ही ठीक है? uh, Sir, अगर if the candidate thinks that he can focus solely upon one exam and do that, then definitely he or she should go for it. But in my case, I felt that besides doing regulatory prep, I should also have a safe and secure plan B as well. So I decided to enroll in इनकॉम. प्लस 4 gap years हो गए थे. So ऐसा हो गया था कि मैं प्राइवेट सेक्टर के लिए भी रेडी नहीं था फिर, बिकॉज ऑफ 4 gap years. प्लस अगर रेगुलेटरी एंड यूपीएससी की जर्नी में फंसे रह गए, तो फिर एक फ्यूचर थोड़ा सा ब्लीक लग रहा था. So that was my major purpose for doing MCOM. And it definitely helps in the interview, especially as well.
क्योंकि फिर आपके पास और ज्यादा एवेन्यू हो जाता है बोलने को। तो इससे क्या हुआ कि मेरा बीकॉम भी कॉमर्स में हुआ, यूपीएससी में भी मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था, प्लस एमकॉम में भी कॉमर्स हो गया। सो मेरी पूरी प्रोफाइल क्या होगी, फिर पूरी कॉमर्स की हो गई। सो मेरा जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन था वो काफी कम हो गया। कोर फाइनेंस, कोर आरबीआई प्रेप, कोर इकोनॉमिक्स प्रेप, कोर अकाउंटेंसी प्रेप, इसी में फिर मुझे करना था। सो दैट ऑल्सो हेल्प अ लॉट इन दैट। ओके। हाँ, अब एक मेरे पास क्वेश्चन ये है कि जब आप मान लो आपने यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम इन 2022, आपने रेगुलेटरी स्टार्ट किया 2022 में, राइट? तो उस साल यस सर। आपने कौन कौन से एग्जाम दिए, और वहां से आप स्ट्रेटेजी समझाओ कि वहां से आपका अप्रोच क्या था जब आपने रेगुलेटरी चूज किया। तो क्योंकि जब रेगुलेटरी चूज करते तो एक होता है कि हाँ बैंकिंग भी, बैंक पीओ भी जा सकते हैं, एसबीआई पीओ, दूसरे एग्जाम्स। तो वो आपने क्यों नहीं किया, और साथ ही साथ रेगुलेटरी चीज कर फिर उसके बाद आपका जर्नी कैसा रहा? यस सर। सो 2022 में मैंने अपना फोर्थ अटेम्प्ट दिया था यूपीएससी का, एंड आई मिस्ड इट बाय 1 मार्क्स। तो तब फिर देखना चालू किया कि और एग्जाम्स क्या हैं। तो 2022 में क्या हुआ था, आरबीआई और यूपीएससी की साइकिल नियरली सेम थी। मई जून में ही दोनों एग्जाम्स हुए थे प्री के। सो आई कुडेंट गिव आरबीआई, बट नाबार्ड बाद में हुआ था, इफ आई एम नॉट, सितंबर के अराउंड हुआ अक्टूबर, हाँ, था। अक्टूबर में। सो आई हैड, हाँ सर, तो उस साल ये टाइम था कि नाबार्ड की प्रेप हो पाए। प्लस ईएसआई की प्रेप ऑलरेडी यूपीएससी में हो चुकी थी। आंसर राइटिंग आती थी ड्यू टू मींस प्रेप। तो बस एआरडी प्रेप करनी थी एंड थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी थी। प्लस नाबार्ड में स्पेशली क्या अच्छा था कि क्यूआरई ये सब केवल सेक्शनल कट ऑफ होता है, विच इज इवली क्लियरेबल। आरबीआई के उलट वो आराम से क्लियर हो जाता था। सो दैट्स उसमें आराम से फिर डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव फेज 1 हो गया, फेज 2 क्लियर हो गया, एंड इंटरव्यू तक पहुंच गया। फिर जब इंटरव्यू तक पहुंच गए एंड क्लियर नहीं हुआ, तो लगा कि हाँ, कि ये प्रिपरेशन की जा सकती है। एंड कमिंग टू व्हाई नॉट बैंकिंग सेक्टर, सर आई एम नॉट वेरी गुड एट क्वांट एंड रीजनिंग। तो इसलिए एंड बैंकिंग एंड कोर इंश्योरेंस सेक्टर की प्रिपरेशन के लिए क्वांट एंड रीजनिंग आई बिलीव शुड बी शुड बी रियली गुड। एंड मुझे नहीं लग रहा था, मुझे वो कन्विक्शन नहीं आ रहा था खुद से कि मैं उस टाइप की प्रेप कर सकता हूँ। प्लस आई वॉन्टेड टू फर्स्टली प्रिपेयर फॉर दोज एग्जाम्स विच हैड ओवरलैपिंग क्वेश्चन विद माई प्रीवियस प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। तो ईएसआई पोर्शन हो गया, इंग्लिश का पोर्शन भी काफी हद तक हो गया, सिंस द हिंदू लगातार पढ़े हैं 4 5 6 7 साल ड्यूरिंग द प्रिपरेशन जर्नी। तो वो प्रिपरेशन हो गया। प्लस आरबीआई में स्पेशली एफएम पोर्शन काफी हद तक यूपीएससी के कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल से ओवरलैप करता है, एंड इवन एमकॉम के भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं एमकॉम में, उससे भी ओवरलैप करता है। तो पहले इन एग्जाम्स को टैप करने का ज्यादा मन किया, जो मेरी प्रीवियस प्रिपरेशन जर्नी को ओवरलैप कर रहे हो। सेबी भी इसीलिए मेरा बहुत करने का मन था, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द सब्जेक्ट्स इन सेबी फेज 2 इन द ऑब्जेक्टिव सेक्शन मैच करते वर हैं। ओवरलैपिंग। हाँ, वो यस एमकॉम सर। से तो बेसिकली ये बेसिक, मेनली हाँ, फोकस था। एमकॉम से सेबी का जनरली सिलेबस एमकॉम से ज्यादा वो करता है। ओके। यस सर। हाँ, आपने यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यू सेड दैट यू वर नॉट गुड इन क्वांट एंड रीजनिंग, एंड नाउ a यस lot सर। of people can relate with that thing कि they basically feel that I'm not saying someone is good or bad, वो basically practice का खेल है। but they would be interested in knowing कि if you feel that you were not very good in quant and reasoning, then how did you clear RBI in 2023 prelims? Then again you clear RBI grade B in 2024. So there are some consistencies, right? Other exams भी आप clear यस कर सर। पा रहे हो। तो आप ये बताओ कि क्या एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी है फॉर क्वांट एंड रीजनिंग? देखिए सर, परफेक्ट स्ट्रैटेजी तो हर एस्पिरेंट को खुद बनानी पड़ेगी अपनी, क्योंकि हर एस्पिरेंट को खुद पता है कि आपके कौन से स्ट्रेंथ वाले एरिया है, कौन से वीकनेस वाले एरिया है। तो व्हाट आई सजेस्ट एवरी एस्पिरेंट कि फर्स्ट डू अ वेरी थॉरो पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ वॉट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, बीट आरबीआई, सेबी, नाबार्ड एक्सेट्रा। जब आप अच्छे से पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे, तो आपको कुछ सेक्शंस मिलेंगे कि किस किस सेक्शन से ज्यादा टॉपिक्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई का जब मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया, तो मुझे ये समझ में आया कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड विच इज इजिली डुएबल by some set of practice. Then data sufficiency से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट एंड डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, कोई 3 डीआई आती हैं आरबीआई फेज 1 में, उसमें से 1 डीआई इज ऑलवेज अ डुएबल डीआई। नाउ आई शुड नो टू चूज दैट डीआई एंड देन सॉल्व दैट डीआई इन द गिवन टाइम फ्रेम ऑफ 25 मिनट्स। तो पहले कौन से शुरू करते हैं, तो कौन का ये चल रहा था मेरा। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार किया। डेटा सफिशिएंसी में तैयार कर रहा था, बट मुझे उसमें कन्विक्शन नहीं आ रहा था। आई कुडेंट सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व जरूर हो जा रहा था, बट उस टाइम फ्रेम में सॉल्व नहीं हो पा रहा था जो जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। तो उसको मुझे कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ा। फिर डीआई के टॉपिक्स पे आए, जो परसेंटेजेस होता है, फ्रैक्शंस होता है, जो पहले डीआई सॉल्व करने के टॉपिक्स होते हैं, उनको अच्छे से किया। खूब सारी डीआई प्रैक्टिस की, विद माय फ्रेंड्स प्रैक्टिस की ऑन गूगल मीट, खुद से भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, वीडियोस देखी काफी, एंड उस पे किया। अब एग्जाम में क्या हुआ, इस साल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं आया। तो दो क्वेश्चन मेरे को जो था कि डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे, वो नहीं आया। तो हल्का सा झटका वहां पे लगा। तो आई इमीडिएटली वेंट थ्रू ऑल द क्वांट क्वेश्चंस। तो उसमें फिर मुझे केवल डीआई लगा कि डीआई जो सॉल्वेबल लग रही है।
तो डीआई चालू किया सॉल्व करना, बट फर्स्ट डीआई सॉल्व नहीं हो पाई, एंड ओनली लास्ट के 10 मिनट्स बचे हुए थे, एंड आई हैड जीरो सॉल्व क्वेश्चन इन द क्वांट सेक्शन। सो आई काम डाउन माई सेल्फ अ बिट, कि लगा उस साइंस तक समझ में आ गया था कि हाँ पेपर टफ है, पेपर टफ है, तो केवल कुछ क्वेश्चंस मुझे हिट करने हैं एंड सिक्स में क्लियर हो जाएगा, इतना समझ में आ गया था। तो जल्दी से काम डाउन किया, थोड़ा सा पानी पिया, 10-20 सेकेंड्स का टाइम लिया, देन आई स्टार्टेड सॉल्विंग द सेकंड डीआई। फॉर्चुनेटली ये सेकंड डीआई हिट हो गई जल्दी, और जल्दी जल्दी टेबुलर फॉर्मेट भी बन गया, सॉल्व होता चला गया, एंड उसके वो सेकंड डीआई पूरी सॉल्व हो गई। सो दैट इज हाउ आई क्लियर माई क्वांट का कट ऑफ। कमिंग टू द रीजनिंग पार्ट, आई एम नॉट गुड एट पजल्स, पजल सॉल्व जरूर हो जाती है, बट अगेन उस टाइम फ्रेम में सॉल्व नहीं हो पाती है जो कि रिक्वायरमेंट है एग्जाम की। सो व्हाट आई डिड, आई ट्राई टू सॉल्व ऑल अदर क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम पजल्स। तो इंग्लिश अच्छी होने का एक बेनिफिट ये हुआ कि क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन मेरे मुझसे ठीक से काफी अच्छे एक्यूरेसी से सॉल्व हो जाते हैं, प्लस वो जो अदर मुझे क्वेश्चन लगता है वो होते हैं। कहीं ना कहीं यूपीएससी का भी हेल्प करता है, बिकॉज दैट एथिक्स एंड ऑल जो है वो थोड़ा सा आपको यस सर। बेसिकली माइंड सेट मैच कर पाता है, जो एजुकेटर का जो क्वेश्चन सेट करने का माइंड सेट है वो मैच कर पाता है। दैट ऑल्सो यस हेल्प। सर, प्लस हाँ सर, यहाँ पे एक चीज और ऐड करूंगा, जब आप काफी चीजें पढ़ने लगते हो, लाइक न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ते हो, प्लस कोर्स बुक्स के अलावा भी थोड़ा बहुत पढ़ते हो, तो आपको माइंडसेट डेवलप होने लगता है कि एजम्पशन पूछ रहा है पैसेज में, इन्फरेंस पूछ रहा है पैसेज में, तो आप वो समझने लगते हो कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है, उसकी पोजीशन से, उसकी उसके थॉट प्रोसेस से आप कहीं ना कहीं जुड़ जाते हो। तो वो हेल्प करता है जब आप एक अविड रीडर होते हो, एक अच्छे अच्छे से रीड करते हो हर चीज को। तो रीजनिंग में मेरा कोई बहुत स्ट्रैटेजी अलग नहीं थी, यही स्ट्रैटेजी थी कि पजल्स के अलावा मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैंने यही ट्राई किया, एंड सिलॉजिज्म अच्छे से किया, उसके अच्छे से वीडियोस करी, जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं सिलॉग्स में उसकी काफी अच्छे से प्रैक्टिस करी, फिर जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में उनको अच्छे से किया, एंड क्रिटिकल रीजनिंग अच्छे से की। तो यही इक्वालिटी इनइक्वालिटी अच्छे से की, तो बाकी जितने टॉपिक्स थे उन पे अच्छे से फोकस रखा। तो दैट हैव बीन क्लियरिंग द सेक्शनल कट ऑफ बाय सेफ मार्जिन, आई से। क्वांट में थोड़ा सा जरूर गड़बड़ हुआ था, बट वही है कि एग्जाम एनवायरनमेंट में आपको थोड़ा सा कूल एंड काम रहना है, स्वेटिंग वैसे एकदम से परेशान नहीं होना है, भले ही सिचुएशन आपके एडवर्स जा रही हो, कोई बात नहीं है, हो सकता है एडवर्स जाएंगे, वो सबके लिए एडवर्स जा रही है, तो कूल एंड काम रहिए, ट्राई कीजिए कि कुछ क्वेश्चन हिट हो जाए। यस सर। ओके, तो आपने बोला कि क्वांट, ये तो क्वांटिटी हो गया, इंग्लिश जनरली वही है कि इंग्लिश इज ऑल अबाउट रीडिंग, वो अच्छी है। अब दूसरा सेगमेंट है यस। जनरल अवेयरनेस, राइट? जनरल अवेयरनेस इट्स कह सकते हैं एक तरह से जीन है जो कि सब लोग चाहते हैं उसको, मतलब वो बाहर निकलना, और लेकिन वो डिकोड नहीं कर पाते, राइट? सो नाउ टेल मी, व्हाट डिड यू डू फॉर जनरल अवेयरनेस, एंड टेल मी हाउ वाज योर अप्रोच, वाज इट preparing only for phase 1 first and doing the integrated preparation for phase 2, and how did you basically tell me what was your strategy for, and also tell me the sources that you followed for this particular segment. यस सर, सो आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे क्वांट एंड रीजनिंग की किसी तरह से सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, एंड ओवरऑल कट ऑफ मेरा इंग्लिश और जीएस से ही क्लियर होगा, सिंस दैट इज माय गुड एंड स्ट्रॉन्ग पार्ट। तो ये स्टार्टिंग से पता था, एंड अब क्योंकि 1.5 साल 1 साल की प्रेप हो चुकी थी, तो सोर्सेस तकरीबन सारे पता थे कि कौन सा सोर्स, थोड़ा थोड़ा सबका प्री मटेरियल पड़ा हुआ था, तो आई न्यू कि व्हाट इज वर्किंग फॉर मी एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर मी। तो जो फर्स्ट नाबार्ड अटेम्प्ट था, तब तक तो जो मार्केट में जो फेमस सोर्सेस थे केवल उन्हीं के बारे में पता था, बट जब इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गए तो थोड़े नॉट नोन सोर्सेस भी पता चलने लगे कि जो जो और भी अच्छे हैं, एंड उसमें फिर आपका भी पता चला कि आपका भी पीआईबी मैगजीन उस टाइम आपकी आती थी, तो वहां से फिर थोड़ा सा चालू हुआ। तो जब आपकी मैगजीन देखी तो उसमें मुझे क्या अच्छा लगा कि आप, जो मैं यूपीएससी की मैगजीन करता था लाइक विजन आईएएस की, उसका फॉर्मेट और आपका फॉर्मेट में मुझे काफी सिमिलैरिटी लगी। सो दैट हेल्प मी इन इन इंटीग्रेटिंग माय यूपीएससी प्रेप विद माय रेगुलेटरी प्रेप। तो मुझे दिक्कत नहीं हुई एकदम से एनालिसिस ओरिएंटेड करंट अफेयर्स करने की जो यूपीएससी में करते हैं, टू अ फैक्चुअल ओरिएंटेड करंट अफेयर। जैसे मुझे अभी भी याद है कि आप साइड बॉक्सेस बनाते थे, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी हेडिंग है, कोई ऐसा टॉपिक है जो टॉपिक का वर्ड मुझे सही से नहीं आता होगा, आपने तुरंत उसका येलो बॉक्स में नीचे उसमें उसका मीनिंग रखा, तो आई डेंट हैव टू गूगल इट अगेन। तो वो अप्रोच मुझे काफी अच्छी लगी, एंड दैट्स व्हाई आई डिड पीआईबी मैगजीन ऑफ योर्स फ्रॉम 2022 फॉर 2 years आई फॉलोड योर मैगजीन। जीए के लिए मैं न्यूज वर्ल्ड कर रहा था, क्योंकि उस टाइम तक आपकी जीए की मैगजीन नहीं आती थी, केवल पीआईबी एंड ईएसआई करेंट अफेयर्स मैगजीन आती थी। जीए के लिए आई वाज डूइंग न्यूज वर्ल्ड, जो कि लास्ट 3 months का किया था क्रैक डेट भी से, एंड इको सर्वे, बजट और ये कंपाइलेशंस, ये दोनों का मिक्सचर किया था, कुछ आपसे किया था, कुछ क्रैक डेट भी से किया था, जिसका ज्यादा अच्छा लग रहा था उसमें। तो ये कोर प्रेप थी मेरी। कमिंग टू द, ये तो सोर्सेस हो गया, कमिंग टू द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी।
कोई बहुत ऐसी बहुत बड़ी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी नहीं थी। लास्ट 5 to 6 months ट्राई किया पीआईबी एंड ईएसआई करंट अफेयर्स मैगजीन अच्छे से करने का, मल्टीपल रीडिंग्स करने का, उसमें साइड हेडिंग उसमें साइड में नोट्स बनाने का, मार्जिन जो होती हैं उसमें नोट्स बनाने का, मल्टीपल हाईलाइटर से थोड़ा सा बार बार उसको हाईलाइट करने का। सिंस फैक्चुअल ओरिएंटेड एग्जाम है, सो रिविजन एंड मॉक टेस्ट इज रियली द की ओवर हियर। द थिंग इज, एमसीक्यूज में क्या होता है सर, हमारे सामने आंसर रखा हुआ है, हमें बस उस आंसर को कॉल करना होता है। तो भले ही आपको एग्जैक्ट फिगर ना पता हो, बट आपको उस फिगर के अराउंड का भी पता हो, आप रिकॉल कर पा रहे हो कि हाँ मैंने ये फिगर कहीं ना कहीं इस मैगजीन के इस पेज में इस टॉपिक में पढ़ा है, दैट इज इनफ फॉर क्लियरिंग अ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड पेपर। सो यही मेरा ट्राई था कि 4 to 5 रिविजन करने का था। 5 to 6 months पीआईबी किया, थ्री थ्री मंथ्स का सिंगल लाइनर जीए वाला किया, गवर्नमेंट स्कीम्स का कंपाइलेशन किया, रिपोर्ट्स का कंपाइलेशन किया, जो ऑफिशियल आरबीआई की रिपोर्ट्स होती हैं लाइक ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, रिपोर्ट्स ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इनको अच्छे से किया। एंड देन खूब सारे मॉक सॉल्व किए। एंड इसके अलावा जो एक स्ट्रैटेजी मेरी और रही थी कि वी हैड 3 लाइक माइंडेड ओरिएंटेड फ्रेंड्स जो कि मेरे स्कूल एंड कॉलेज फ्रेंड्स थे। उनके साथ हम लोग रोज रात जी मीट करते थे, गूगल मीट करते थे फॉर 1.5 hours 2 hours। एंड एक शेड्यूल बना रखा था हमने, जो जो हम लोग पढ़ते थे वो चीज हम लोग डिस्कस करते थे आपस में, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते थे और खुद थोड़ा सा सॉल्व करते थे। तो दैट रियली हेल्प्ड इन इन दिस रिकॉलिंग प्रोसेस। फिर अभी आपने क्वेश्चन पूछा था फेज 1 की अलग की या फेज 2 की अलग प्रिपरेशन की, तो आई रियली एडवाइस एस्पिरेंट्स टू नॉट डू दैट, डू एन इंटीग्रेटेड प्रेप। कि आरबीआई, क्योंकि इस बार आपने देखा कि नाबार्ड फेज 1 में उन्होंने आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन उठा के पूछ लिए, नोटिफिकेशन से क्वेश्चन पूछ लिए। गवर्नमेंट नाबार्ड का फेज 1 यूजुअली गवर्नमेंट स्कीम्स ओरिएंटेड रहता था, बट इस साल उन्होंने स्विच कर दिया। आरबीआई का फेज 1 पीआईबी ओरिएंटेड रहता था, बट इस साल थोड़ा सा उन्होंने सिंगल लाइनर जीए ओरिएंटेड ले आए। सो यू कांट डू दैट। आईबीपीएस पैटर्न क्या हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, वी नेवर नो। तो मैं आरबीआई प्लस नाबार्ड की इंटीग्रेटेड प्रेप कर रहा था, तो मुझे एनीवेज गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स, पीआईबी, इन सब पे फोकस रखना था। तो मैंने इसको सेग्रीगेटेड प्रेप नहीं की, मैंने होलिस्टिक प्रिपरेशन की। बस जब फेज 1 खत्म हुआ तो जो सिंगल लाइनर जी हमें अब नहीं करने होते हैं, तो उसको प्रिपरेशन से हटा दिया। एंड जो गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स, इनका ज्यादा वेटेज होता है फेज 2 में, तो इनका रिविजन बस बढ़ा दिया। बाकी सोर्सेस मैंने सेम रखे, प्रिपरेशन मैंने इंटीग्रेटेड रखी फॉर करेंट अफेयर्स। यस सर। ओके, ये तो था मतलब दिस वाज फॉर फेज 1 एग्जाम। ओके, नाउ लेट्स ओके वन मोर थिंग दैट इफ आई हैव टॉक अबाउट द मॉक, बेसिकली मॉक्स, व्हाट काइंड ऑफ मॉक्स यू गेव एंड हाउ डिड यू एनालाइज दोस थिंग्स, सो टेल मी अबाउट द मॉक्स फॉर फेज 1। यस सर, सो मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, बिकॉज जितने आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट दोगे उतनी अच्छी आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ेगी। प्लस टाइम बहुत कम होता है हमारे पास, हम पूरे 80 क्वेश्चन दे भी नहीं पाते हैं इन द जीए। आई वॉज एबल टू सी ओनली 72 क्वेश्चन दिस ईयर, एंड लास्ट ईयर 2023 में आई रिमेंबर आई कुड सी ओनली 73 क्वेश्चन। तो पूरे 80 क्वेश्चन आप देख भी नहीं पाते हो। तो उसी 65 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन जो आप गो थ्रू कर रहे हो, उसमें आपको कट ऑफ भी क्लियर करनी है, सेक्शनल भी प्लस ओवरऑल भी। तो इसके लिए अच्छा होता है कि आपका हिट रेट अच्छा होना चाहिए। यू शुड नो this question is of my type, I can attempt it with a good accuracy, and this question is not my type, 4-5 सेकंड दिए उसको, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको केवल और केवल मॉक्स ही दिखा सकते हैं। आप भले ही 4, 5, 6, 10 बार रिविजन कर लो, बट आपने मॉक्स अटेम्प्ट नहीं किए एंड यू डोंट हैव अ नैक ऑफ अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज, तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगी एक्चुअल एग्जाम में रेप्लीकेट करने में। तो फॉर्चुनेटली आई हैड यूपीएससी बैकग्राउंड, तो उसमें खूब सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाए हुए थे, तो आई न्यू द थोड़ा सा नैक ऑफ सॉल्विंग द एमसीक्यू, भले वो एलिमिनेशन अप्रोच हो या फिर क्या एक्सट्रीम वर्ड्स ओरिएंटेड अप्रोच हो, यूजुअली एक्सट्रीम वर्ड्स में होता है। आईबीपीएस में कई बार क्या करते हैं, वो अगर इनकरेक्ट ऑप्शन होता है तो उसका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं उसमें। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि अगर इस एमसीक्यू में ग्रामेटिकल एरर है तो मोस्ट प्रोबेबली हाई एक्यूरेसी, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो एमसीक्यू आपका गलत होगा। तो ये सब आपको पीवाईक्यू एनालिसिस से पता चलेगा, थोड़े बहुत एग्जाम्स देके पता चलेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉक्स से पता चलेगा। तो आई ट्राई टू गिव एज मेनी मॉक्स आई कैन, प्लस मैंने जो बताया मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करता था, तो दैट ऑल्सो हेल्प अ लॉट। ओके, यस सो नेक्स्ट कम टू द सेकंड फेज 2 प्रिपरेशन। फेज 2 के लिए व्हाट वर योर सोर्सेज, मतलब कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फाइनेंस मैनेजमेंट, देन ईएसआई, and then we would be moving to interview stage. So first tell me about the finance management, or because you had a bit lower score in 2023, and that was one of the reason, as I told you in that time when you gave me the result कि सर ये रिजल्ट आया हुआ है, तो मैंने उस टाइम बोला था कि चलो इंटरव्यू तो अनकंट्रोलेबल है, वहां पर कंट्रोल नहीं कर सकते, बट इफ यू हैड स्कोर 10 मार्क्स एडिशनल इन फाइनेंस मैनेजमेंट तो आपका 2023 में हो जाता है। सो
how did you prepare this particular segment after 2023? और पहले 23 के लिए क्या किया, उसके 24 के लिए आपने क्या उसमें चेंज लाया कि so that you can manage the selection basically? सो सर 2023 में एक मेजर मिस्टेक क्या हुई थी कि फेज टू पहले से प्रिपरेशन नहीं किया था। हेल्प क्या हुई कि मेरे पास बैकग्राउंड था कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल का प्लस एमकॉम का। तो टॉपिक्स नए नहीं थे मेरे लिए, बस वो बैक ऑफ माइंड में जा चुके थे, उनको रिवीजन की जरूरत थी। बट क्योंकि 2023 में फेज वन ओरिएंटेड अप्रोच ज्यादा रखी, क्योंकि फर्स्ट टाइम सीरियस अटेम्प्ट था आरबीआई का। एंड प्लस 2023 में क्या हुआ था, फेज वन रिजल्ट के बाद वी हैड ओनली 11 डेज लेफ्ट फॉर फेज टू। तो उन 11 डेज में इतनी प्रेप नहीं हो सकती पूरे एफएम की आप पूरा उसको सिलेबस कर लो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लो, एक्सेट्रा। तो दिस वाज द मिस्टेक आई मेड एंड दैट मिस्टेक कॉस्टेड मी। एफएम ऑब्जेक्टिव में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, डिस्क्रिप्टिव में अच्छे मार्क्स थे बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड ऑफ यूपीएससी एंड नाबार्ड का ये मेंस की प्रेप की हुई थी पहले, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग थी, तो उस वजह से डिस्क्रिप्टिव में अच्छे आ गए। दैट हेल्प मी इन क्लियरिंग फेज टू ऑफ 2023। बट क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कम रह गए तो वो ओवरऑल स्कोर थोड़ा सा कम रह गया, तो मिस्टर ओवरऑल कट ऑफ 7 मार्क्स। तो इस साल चेंजेस क्या लिए? चेंजेस सबसे पहले इसी किए थे कि नोटिफिकेशन के पहले एटलीस्ट जो कोर स्टैटिक क्वेश्चन है फेज टू का, वो एक बार दो बार आपको आना चाहिए। कोई भी टॉपिक आपके लिए न्यू नहीं होना चाहिए आफ्टर फेज वन एग्जाम, एटलीस्ट स्टैटिक क्वेश्चन का। तो यही स्ट्रैटेजी थी कि क्वांट रीजनिंग एंड स्टैटिक क्वेश्चन ऑफ फेज टू, ये नोटिफिकेशन के पहले थोड़ा सा मेजर क्वेश्चन आपका रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो चेंज नहीं हो सकता। क्वांट के फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे, रीजनिंग के फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे, एफएम की थ्योरीज चेंज नहीं होंगी। नोटिफिकेशन क्योंकि एक फिक्स कैलेंडर नहीं है आईबीपीएस का, प्लस बहुत स्पेकुलेशन होता रहता है कि अब नोटिफिकेशन आएगा अब आएगा। सो करंट अफेयर्स का कई बार पता नहीं चल पाता है कि कौन से मंथ का प्रिपरेशन करना है, किस मंथ की होलिस्टिक प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज लास्ट 6 मंथ की भी प्रिपरेशन में लास्ट 3 मंथ से सबसे ज्यादा हिट रेट होता है आईबीपीएस में क्वेश्चंस का, पीआईबी का। तो वो आप नोटिफिकेशन के बाद कर सकते हो, गिवन आपने फेज टू के अच्छे से प्रेप कर रखी है, आपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अच्छे से प्रेप कर रखी है, आपने क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की अच्छे से प्रेप कर रखी है। तो दिस वाज माय बेसिक मोटो ऑफ दिस ईयर। देन इस साल फिर सोर्सेस पे क्या किया, एक कोर्स खरीदा था एंड सारे टॉपिक्स मुझे पहले से आते थे, बस उस कोर्स से उसको रिवीजन अच्छे से किया एफएम के टॉपिक्स का। एफ फाइनेंस क्वेश्चन में जो करंट अफेयर क्वेश्चन है होता है हमारा, आरबीआई सर्कुलर्स नोटिफिकेशन एक्सेट्रा का, उसको इस बार मैंने ऑडियो वीडियो वीडियो मीडियम से ट्राई किया करने का, तो उसको प्रिपरेशन की। जो पीआईबी वाला क्वेश्चन था उसको प्रिपेयर किया, आंसर राइटिंग ट्राई किया, हर 2-3 दिन में एक दो आंसर लिखने का एंड वीकली मॉक्स देने का ट्राई किया, एंड उसको ग्रामरली से चेक करने का, चैट जीपीटी से चेक करने का। अगर आपके पास पेड प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे आप इवैल्यूएशन करा पाओ, तो एआई प्लेटफॉर्म्स का काफी यूज किया मैंने इन बोथ फेस टू एंड इंटरव्यू, तो बहुत यूज किया इस बार मैंने एआई का प्लेटफॉर्म। आई जस्ट अपलोडेड माय बायोडेटा ऑन चैट जीपीटी, उससे क्वेश्चंस बनाने को बोला, इवन आंसर्स भी कई सारे मैंने उनके यूज किए सिंस इट हैड माय बायोडेटा, so that helped me a lot this year. Yes, sir. Okay, so this was your basically फेज टू प्रिपरेशन, FM या question. एफएम Yes, प्रिपरेशन। sir. तो एंड व्हाट डिड यू, देखो अगर हम लोग बात करते हैं ईएसआई का, सो ईएसआई वन ऑफ द कह सकते हैं वन ऑफ द रैंडम सेक्शन, या वहाँ कह सकते हैं द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट दे आस्क, इट इज बेसिकली ट्रिकी इन नेचर एंड इट हैज बीन इन लास्ट 5 to 6 years. सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर ईएसआई? Yes, sir. तो ईएसआई का मेरा इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज, जो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ये यूपीएससी बैकग्राउंड ने हेल्प किया काफी, बिकॉज दोनों क्वेश्चन यूपीएससी में काफी अच्छे से प्रिपरेशन की हुई थी। तो स्टैटिक क्वेश्चन आई वॉज रेडी एंड आई वॉज कंफर्टेबल इन राइटिंग द आंसर। सो डिस्क्रिप्टिव की बहुत टेंशन नहीं थी, ये डिस्क्रिप्टिव पता था कि मैनेज हो जाएगा, कि आउट ऑफ 3 क्वेश्चन हमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं आरबीआई में, तो आई वॉज ऑलवेज कॉन्फिडेंट कि दैट 2 क्वेश्चन कैन बी इजिली मैनेज। एंड राइटिंग स्पीड अच्छी थी, टाइपिंग स्पीड अच्छी थी, प्रोफॉर्मा जल्दी से बना लेते थे क्योंकि मीन्स की यूपीएससी मीन्स की प्रिपरेशन की हुई थी, तो वो बहुत दिक्कत का काम नहीं था। जो लोग बैकग्राउंड नहीं है उनको मैं यही एडवाइस करूंगा कि अच्छे से आप थोड़ा टाइम दीजिए स्टैटिक को, अच्छे सोर्सेस से प्रिपरेशन कीजिए एंड हॉलिस्टिक एक व्यू रखिए, न्यूज़पेपर्स अच्छे से पढ़िए, उससे बहुत आपका वैल्यू रिकॉग्निशन होगा, उसमें वैल्यू एडेड मटेरियल बहुत ज्यादा मिलेगा जो कि आप यूज कर सकते हो। उसको आप करोगे तो धीरे धीरे आप खुद देखो कि आपकी आंसर राइटिंग अप्रोच कितनी ज्यादा अच्छी होती चली जा रही है। अगर आप किसी पेड प्लेटफॉर्म पे हो तो इवेलुएट करवा लीजिए, नहीं तो अब इतने सारे ये प्लेटफॉर्म है उससे आप इवेल्यूशन आराम से कर लीजिए, अदरवाइज पीयर ग्रुप से इवेल्यूशन आप करा लीजिए। कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव सेक्शन, डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव इज अ ट्रिकी, बट अगेन इट इज ट्रिकियर फॉर एवरीवन। लास्ट ईयर 2023 में एकदम रैंडम ऐसा ऑब्जेक्टिव आया था, बट एवरेज मार्क्स में सबके कम हो गए थे। एवरेज मार्क्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग 22-23 थे लास्ट ईयर ऑब्जेक्टिव के ईएसआई में। इस साल अभी तक मार्क्स आउट नहीं हुए,
बट इस साल ये शायद थोड़ा बेटर था, तो आई गेस थोड़े से मार्क्स अबव हुए होंगे। तो वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द कि क्या क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। प्रिपरेशन सोर्सेस सबके सेम है, आपको होलिस्टिक प्रिपरेशन करनी है। बस बाकी एग्जाम के दिन क्या होगा, आपने मॉक्स लगाए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा पेपर है, आपको ओवर अटेम्प्ट करने हैं नहीं करने हैं, कितने अटेम्प्ट सेफ हैं, वो सब आपको वहां पे आइडिया लग जाएगा। तो यही है सर इसमें ऑब्जेक्टिव में, गिव अ लॉट ऑफ मॉक्स, हैव अ गुड स्ट्रेटजी एंड जस्ट फोकस ऑन इट। यस सर। Okay, so anything that you want to, any mistake, जो मेरा क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि like you had started preparing in 2022, right? आपने वहां पर नवाड दिया, then you gave interview in 2023 also. There were some other exams that you also gave, and this year ultimately you have cleared, and you have previous background preparing UPSC also. So anything, any one or two things that you want to highlight, that if you knew these things, like I would not have done that, if I would not have done that mistake, like we always analyze ourselves that, yeah, if I had not done that mistake, then this could have been possible. So anything that you want to highlight, that if this was not the mistake, or these were the things that I had not done that, then I would have been placed, or I would have been part of this particular organization way before. यस सर। सो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 2023 में मुझसे क्या गलती हुई थी, मैंने एक तो इंटीग्रेटेड प्रेप नहीं की थी, प्लस एफएम की प्रेप मैंने फेज वन रिजल्ट के बाद के लिए छोड़ रखी थी, जो कि केवल 10 डेज थे लास्ट ईयर बिटवीन फेज वन रिजल्ट एंड फेज टू एग्जाम की डेट। एंड दैट 10 डेज में भले ही बैकग्राउंड हो आपका जैसे मेरा बैकग्राउंड था, बट एक होलिस्टिक प्रिपरेशन एग्जाम लाइक सिचुएशन की नहीं हो सकती है। आप भले ही कट ऑफ क्लियर कर लोगे बट वो अच्छे मार्जिन से फिर क्लियर नहीं करोगे, जो कि आपकी इंटरव्यू की अनसर्टिनिटी को कम कर देगा। सो दैट वॉज माई फर्स्ट मिस्टेक विच आई ट्राई टू सॉल्व दिस ईयर by having a good FM preparation beforehand. सेकंड मिस्टेक क्या हुई थी, इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाई थी लास्ट ईयर, सिग्निफिकेंट गैप ईयर्स हो गए थे, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लूज कर दिया था मैंने कि गैप ईयर्स को कैसे जस्टिफाई करेंगे, यूपीएससी प्रिपरेशन को कैसे जस्टिफाई करेंगे। प्लस कहीं ना कहीं थोड़ा नॉलेज गैप भी हो रहा था ड्यू टू ऑल दीज गैप ईयर्स। तो उसकी वजह से लास्ट ईयर इंटरव्यू में अंडर कॉन्फिडेंट गया था मैं, एंड दैट शोड इन माई फेस, एंड उसकी वजह से मार्क्स भी उसी अकॉर्डिंग मिले। 41 आउट ऑफ 75 मार्क्स मिले थे इन द आरबीआई 2023 इंटरव्यू, विच इज बिलो एवरेज मार्क्स। एंड फेज टू ऑब्जेक्टिव अच्छा नहीं हुआ था, स्पेशली एफएम ऑब्जेक्टिव। सो उसकी वजह से कट ऑफ रुक गया था। इस बार क्या हुआ, आई गिव 12 प्लस मार्क्स दिस ईयर, कि मार्क्स बहुत देने हैं, अच्छे से देने हैं, एकदम खुद से पहले सेटिस्फाई हो जाना है। सो जैसे हम लोग अभी जूम मीट पे बात करें, आई कैन सी माई पिक्चर ओवर द कॉर्नर, आई ट्राई टू डू दिस, कि मिरर प्रैक्टिस से अप्रोच की, कि मिरर में आमने सामने देख के खुद को सेटिस्फाई किया कि हाँ मैं बोलते हुए ठीक लग रहा हूँ, ऐसा लग रहा हूँ। जी मीट पे खूब सारा किया, जूम मीटिंग पे खूब सारा किया, फ्रेंड्स से खूब सारे इंटरव्यूज कराए, प्लस मोर देन 12 कोचिंग्स के इंटरव्यूज भी लिए इन अ सिस्टमिक प्लेटफॉर्म। सो इन सबका एनालिसिस अच्छा मिला, प्लस खुद से भी एनालिसिस करने में बहुत हेल्प मिली। सो दैट हैड बीन द इंटरव्यू, आई वाज फार मोर कॉन्फिडेंट दिस ईयर, आई हैड अ स्माइलिंग फेस। इवन दो तीन क्वेश्चन जो आंसर नहीं हुए उसके बाद भी डल मोमेंट नहीं आने दिया इंटरव्यू में। एंड ऑल्दो मेरा इंटरव्यू लास्ट था इस ईयर, पैनल मेंबर्स काफी टायर हो गए थे, काफी पैनल मेंबर्स थोड़े से टायर हो गए थे, बट स्टिल जो आंसर का वे था उसमें हेल्प हुई, एंड इट वाज अ लाइवली एनवायरनमेंट एंड दैट हेल्प इन क्लियरिंग द एग्जाम। यस सर। Okay, so you gave, basically we got whatever we wanted to hear from you, whatever experience you had, whatever the learning that we wanted to. Definitely in future also we would love to have your experience and expertise on RBI Grade B preparation. But due to time constraint, we will have to stop the session over here. And so thank you very much for joining this particular session, Utkarsh. And I'm really happy for your success, and I really wish that you achieve whatever you have desired, और जितना हो सके मैक्सिमम आप जो ऊपर के हायरार्कीज में आप पहुंचो, ओके, सो दैट वी कैन आल्सो रीड द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू यू इन फ्यूचर, मे बी आफ्टर 10 ईयर 15 ईयर्स, तो वो चीजें हो पाए। सो आई हैव दैट काइंड ऑफ विशेस फॉर यू। ओके, सो रियली रियली हैप्पी फॉर योर सक्सेस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, यू हैव बीन अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी फॉर द लास्ट 2 years। आपकी पीआईबी मैगजीन ने बहुत हेल्प की है, एंड कोर पार्ट थी प्रेप का, स्पेशली करेंट अफेयर्स पार्ट का। एंड आपसे कई बार वन ऑन वन इंटरेक्शन भी हुआ है, भले छोटे छोटे इंटरेक्शन हुए हो, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी पॉजिटिविटी और होप देते थे जब भी आपसे फेस टू की मार्कशीट जाए शेयर की हो या बताया हो कि इससे नहीं निकला। सो यू हैव बीन एन अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस